حیدرآباد کا نقشہ جو صرف ادارے ادبیات اردو میں محفوظ کیا ہوا ہے اور بڑا نایاب نقشہ ہے، یہ پھر کہیں نہیں۔ کس نے تیار کیا تھا؟ نقشے جو ہے اورنگ آباد میں پہلے پایتخت تھا حیدرآباد کا، تو وہاں سے پایتخت منتقل کی حیدرآباد، تو جس وقت حیدرآباد منتقل کیے پایتخت اس سے پہلے ہی نقشہ بنایا حیدرآباد کا کہ حیدرآباد شہر کا نقشہ بنایا جائے، یہ پورا نقشہ بنایا، وہ فصیل ہے، ادھر کالی موسیٰ ندی ہے، یہاں پر چار مینار ہے، سڑکیں قدیم سواریاں ہیں۔ اس وقت ہم لوگ ادارہ ادبیات اردو کے میوزیم میں جمع ہیں۔ یہ جس طرح حیدرآباد میں سالار جنگ میوزیم مشہور ہے ایک شخص کی کارکردگی کے لیے، اسی طرح عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے بعد 1931 میں ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے اپنی کوششوں سے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا۔ جس طرح سالار جنگ میوزیم کی ایک اپنی انفرادی تاریخ ہے، اسی طرح ادارہ ادبیات اردو کی بھی ایک شخص کی کارکردگی کی ایک اہم تاریخ ہے۔ اس میں ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے اب جو تعارف کروا رہے ہیں اس نقشے کا، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کے صاحبزادے رفیع الدین صاحب قادری ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تعارف دے رہے ہیں حیدرآباد کے وہ پرانے نقشے کا، جبکہ 1771 کے بعد شہر حیدرآباد کو بسا کر پایتخت کی تبدیلی عمل میں آئی تھی۔ آپ بتائیں چار مختلف دوسری چیزیں جو آپ کو یاد ہیں۔ نقشے میں چار مینار یہاں پر بتایا گیا ہے کہ گلزار حوض ہے، چار کمان ہیں یہاں پر، اور قدیم سواریاں ہیں اس میں، اور مساجد ہیں، یہ مکہ مسجد یہاں پر ہے، زمانے کی نال کی بالٹی وہاں تک ہیں، اور پہرے دار جو ہے برٹشر بھی ہوتے تھے وہ یہاں پر ہیں، یہ گھوڑ سواریاں ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ چکرم ہے، حیدرآباد کے سپاہی ہیں، یہ ہتھیار یہ کھڑے، یہ جلوس والا ہے۔ اچھا اور فضل صاحب یہ خیالی نقشہ ہے یا حقیقی نقشہ؟ حقیقی نقشہ ہے، حقیقی ہے۔ اس میں 9 دروازے تھے، یہ شہر کے پورے 9 دروازے بھی۔ جس زمانے میں شہر وسیع اور کھڑکیاں اور حصار بند ہوا کرتا تھا، تو اس طریقے سے یہ جو بلو لائننگ دکھ رہی ہے آپ کو، یہ جو ہے یہ دیوار کی نمائندگی کرتی ہے اور اس میں دروازے اور کھڑکیاں بتائی گئی ہیں۔ کالی جو ہے موسیٰ ندی ہے، اس طرح سے یہ موسیٰ ندی جا رہی ہے، یہ موسیٰ ندی۔ دروازے بھی یہ جو بیچ میں دیوار میں لگے ہوئے دروازے، یہ قدیم نقشہ ہے، شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے، نایاب چیز ہے، اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ نقشہ لگایا گیا تھا 1960 میں تو بہت ہی ڈارک تھا، آہستہ آہستہ اس کی سیاہی کم پڑتی جا رہی، مدھم ہو رہی ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے ہمارے بھائی جو امریکہ میں ہیں، جو مختلف اداروں کو امداد دیتے ہیں، وہ اس بارے میں غور کریں اور اس ادارے کے تعاون کے لیے اپنا دست تعاون دراز فرمائیں۔ میں آپ جو حیدرآباد قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں نے جو کتابچہ شہر حیدرآباد کے لیے شائع کیا، اس میں اس نقشے کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کا کچھ حصہ انہوں نے کتابچے کے ٹائٹل پر شائع کیا ہے۔ اس میوزیم میں صرف جو ہے تصاویر نہیں بلکہ شہر حیدرآباد کے مختلف بادشاہ جو قطب شاہی دور کے بادشاہ رہے ہیں ان کے استعمال کی چیزیں، ان کے لباس
उनके हथियार सब चीज़ें महफूज की गई हैं। ये एक आदमी का वाहिद डॉक्टर ज़ोहर का कारनामा है। जिस तरह सालारजंग म्यूजियम भी एक सालारजंग के कारनामे का दर्जा रखता है, उसी तरह इस इदारे की हैदराबाद में अहमियत है। ये हथियार है और बादशाह इन्हें इस्तेमाल करते थे उस ज़माने के, हुमा जुल्फ़कार अकबर बादशाह की तलवार है, अब्बासी तलवार। ये देखिए तलवारों के जो शेप्स होते हैं वो अपनी एक इनफरादियत होती है। ये चाकू मख्फी, कटार सुनहरे काम किए हुए, ये चाकू मख्फी वहाँ भी छुरा दस्तसन, ये इस तरह से। और देखेंगे ये तलवार अपनी मैट में रखी हुई है, ये उसका मैट। और ये अब्बासी दस्ता है, ये बिदरी नक्शकारी के साथ, ये कितना खूबसूरत नक्शा किया हुआ है। ये इस तरह से उस जमाने की ढालें हैं जब जंगों में इस्तेमाल की जाती थी। ये जंबिया सेंग, ये हुमा, अंकुश, ये जिस हाथियों को अपने काबू में रखने के लिए जो चीज़ अंक इस्तेमाल किए जाते थे, ये फरोली है, ये अब्बास अंग्रेजी, ये हाथी दांत में बनाया गया ये खंजर दस्ता, इस तरह से ये खंजर दस्ता माही, ये हाथी के दांत में बनाया। फरोली जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट तलवार इस तरह से क्रॉस होती है, इसको बनाया। फिर उस जमाने के तीर होते थे, तीरों से जंगें हुआ करती थी, ये उसकी की निशानियां हैं। ये बस नायाब चीज़ें हैं, अब कहीं देखने में नहीं मिलती। ये तीर कमान, यहाँ पर देखेंगे कि ये ज़िरा के नीचे पहनने की वर्दी है और एक छोटी सी ढाल भी। जंगों में जंग लड़ने के से पहले इस तरह के लिबास ज़ैब तन किया करते थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये बने नक्ताती के मशहूर नमूने हैं जो सिर्फ इदारे अदबियात उर्दू में देखने मिलेंगे और ये बहुत नायाब होते चले जा रहे हैं। आजकल बने नक्ताती पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उतना के तवज्जो दी नहीं जाती। ये इस तरह से हर एक के एक यहाँ आप देखेंगे कि खत्ताती जो की गई है, कैलीग्राफी जिसे कहते हैं, वो किस अंदाज से जैसे कि शेर की शक्ल में वहाँ पर लिखा गया और मुख्तलिफ किस्म के खत यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो खत्ताती के नमूने दिखाई दिए जा रहे हैं, ये शहर हैदराबाद दक्कन के 200 साला दौर के खत्तातों के मुख्तलिफ नमूने हैं, उनके अपने।
कायनात का एक मॉडल इदारे के म्यूजियम में महफूज किया गया। ये मुख्तलिफ किस्म के पेंटिंग्स, ख्याली तस्वीर जो इदारे की एक बेशकीमत पेश बहा। ये मुख्तलिफ किस्म के सिक्के जो अब तक हमें मुख्तलिफ लोगों की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का कलेक्शन इदारे अदबियात में महफूज किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के, काइंस, सलातीन दहली के सिक्के, निज़ाम शाही सलातीन के सिक्के और कदीम सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं। ये दरबारी लिबास नवाब इनायत जंग का हत्या दिया गया हत्या इसको यहाँ आप बताइए। डब्बों में जो है सिगरे रसूलुल्लाह से लेके फिर उस्मान अली खां तक के तमाम सिलसिला के चिश्तिया, कादरिया, सहरवर्दिया, नक्शबंदिया पूरों के सिलसिले में ये शाही जरूर है मगर इसमें ख्याफा की मदद से बनाए गए हैं। करीबुल हकीकत करीबुल हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह चिराग दहलवी, हज़रत हुसैन शाह चिराग हुसैन शाह वली सागर का तालाब नहीं बना दिया, तालाब को मीर जुमला जुमला जो है जुमला पढ़ता मोहम्मद अहीम मीर जुमला का तालाब, अट्ठा तालाब में जुमला जो है चीनी के ये भी का अंडा है का काम किया हुआ है। ये मोमबत्ती दान है चीनी के, ये तमाम 400 साल कदीम है। शीशे की ये कारीगरी है। शीशे के अंदर से लिखा हुआ है, अब्बासी का नादर नमूना है। ऊपर से तो बड़े आसानी से लिखा जाता है मगर ये इनसाइड से किया हुआ है। अच्छा अच्छा अंदर से उल्टा लिखना पड़ा। ये कदीम ज़माने के कंफे हैं, इसके मुख्तलिफ तस्वीर उतरे हुए हैं, नक्शो निगार, हाथी है और जानवर है। गंजकों को प्ले कार्ड्स कहते हैं, उस ज़माने के प्ले कार्ड्स। ये कुतुब शाही महलात के सनतकारी के कुछ नमूने भी हैं जो यहाँ पर तो वो यहाँ में और उस ज़माने के मेडल्स लोगों के हैं, सारे के हैं और मुख्तलिफ ज़माने के पुराने ज़माने के कॉलेजेस के
ये सालारजंग के ख़ानदान के अजदाद हैं ये पूरे। ये खलमी तस्वीरें हैं, बिल्कुल तस्वीर की तरह दिखती, फ़ोटो की तरह दिखती हैं। अक्कलना मादलना की मंदिर हरिभौली के पास अब भी मौजूद है। कुतुबशाही दौर के आखिरी इमाम थे और कुतुबशाही दौर में जो मजहबी रवादारी थी उसका सबूत है। ये दोनों एक पेशकार और एक दीवान थे और इनको पूरी मजहबी आज़ादी के साथ दरबार में रहने की आज़ादी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये कदीम ज़माने के फरमान हैं, जियोस, जिस तरह से आज के ज़माने में निकल रहे हैं। कौन ऑर्डर्स? ये मोहम्मद शाह, ये यहाँ से ये फरमान है, ये तहरीर है उस ज़माने की तहरीर। और ये मोहम्मद आदिल शाह का फरमान 1656 ईस्वी के ज़माने। के ज़माने की ऐसा मतलब है कि उर्दू के साथ साथ जो है मुकामी ज़बानों में भी तेलुगु है, उस ज़माने में तेलुगु है। तेलुगु का और एक ज़बान में है ये बादशाह शाह आलम का फरमान और शाहजहां, बादशाह शाहजहां का अलग है ये भी अलग है। जी ने बताया कि परिवर्तन ये लायजन के जद्याला है, ये अरस्तुजा है, वज़ीर आज़म, ये दावरुद्दौला, ये कलमी तस्वीर है। इसका रंगत ऐसे इस किस्म की पेंटिंग की हो कि आज तक उसका रंग नहीं गया। महराजी और महाराज का तकरीबन 200 साल पुरानी, और ये तो ख्याली तस्वीर है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, तो ख्याली है। ये क्या महाविनायक के दादा
ये भी रुकनुद्दौला ये आतिफ सामी हैं, उनके वजीर आजम के दरबार में बैठे हैं। ये आदिल शाही सलातीन के पूरा सेट है, ये पूरे सलातीन मुकम्मिल। आपका सेट एक साथ देखने में नहीं आप होते होंगे। अच्छा, ये कुतुब शाही सलातीन का हाथी दाम पर काम है, हाथी दाम पर है ये काम, नादर है, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगा ये सेट पूरा कंप्लीट। किशन को नहीं इंडिविजुअल कॉल करो तो मैं ऐसा जो कुतुब शाह का जुलूस है, नीतीश के हाथी पर सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह बानी से आगे के हाथी तो जमाने में जिस किस्म का जुलूस निकलता था खाने तारीख में पढ़ सकते हैं, देखने में नहीं आता। आज हैदर कुतुब शाह का वो झंडा है, माही है, मराठी है, बीच में माही है, जो छतरी है, आखिर में खटाटूब है, इसमें बादशाह वक्त साथ है, जिनका साथ होता है। उसमें जो है हज़रत मीर मोहम्मद मोमिन को भी बताया गया है, सुल्तान मोहम्मद को लिखे वज़ीर आज़म और ये मेहनत करने का काम है। पंखे हैं, तार के पंखों पर उस जमाने में काम किया जाता था। दौला बहादुर का लिबास साल के वज़ीर आज़म मुकम्मिल लिबास पट्टा है। फोटोज यहाँ जो इदारे अदबियात उर्दू के म्यूज़ियम में महफूज हैं। सुल्तान कुली कुतुब शाह अव्वल मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानिए शहर हैदराबाद सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही सल्तनत के आखिरी ताजदार सुल्तान अबुल हसन काना शाह अब यहाँ से आदिल शाही बादशाहों के तस्वीर शुरू होते हैं। सुल्तान यूसुफ आदिल शाह सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सिकंदर आदिल शाह सुल्तान कुली आदिल शाह सानी आसिफ जाही दौर और आसिफ जाही बादशाहों के फोटोज नवाब अफजल उद्दौला मीर उस्मान अली खां आसिफ साबे
1931 में कायम किया गया था इदारे के साथ ही। तो यहाँ पर अब इस वक्त तकरीबन 70,000 किताबें महफूज हैं, इसमें बात बहुत नादिर नायाब हैं जो किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं, और इसका ज़ख़ीरा यहाँ पर जमा है। तो ये भी तंग दामनी का गिला कर रहा है, हालांकि ये एक रूम इजाफा किया गया बाद में। लाइब्रेरी इदारे अदबियात उर्दू के लाइब्रेरियन साहिबा मोहतरमा अल्ताफ उन्नीसा, आप किताबों के बारे में यहाँ से कुछ बताइए, यहाँ की किताबों के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हैं? यहाँ पे उर्दू की किताबें बहुत ज़्यादा हैं, पूरे उर्दू की हैं समझे। मैगजीन्स हैं, मुख्तलिफ मैगजीन्स हैं, मानानी सुमानी 6 महीने की, ऐसा मुख्तलिफ शिक्षा ही है। और उर्दू की हर उस पर फनते मिलेंगी आपको किताबें, तसव्वुफ़ है, ऐसा मजहबी है, रिलीजियस है। उर्दू के अक्सर PhD के तलबा हमारे पास से बहुत इस्तेफादा करते हैं। जुमला आपके पास कितनी किताबें? 70,000। अच्छा, इनकी हालत कैसी है? अच्छी हालत है, बाइंडिंग वगैरह होती है? बाइंडिंग करवाते हैं और फ्यूमिगेशन चैम्बर में रखते हैं किताबें को, दीमक वगैरह नहीं खाना बाइंड करवा के लैमिनेशन करते हैं। जो रेयर किताबें हैं जो मिलते नहीं हैं हमारे पास, उसको लैमिनेशन करते हैं। वो किताब की कीमत से कई गुना हमारा खर्चा हो जाता है। अगर ये नई अलमारियाँ वगैरह आप लोगों का बजट कुछ अलग से गवर्नमेंट सैंक्शन करती है या आप लोग प्रोवाइड कर लेते हैं? ये पता नहीं, ये तो फिर भी जो है लाइब्रेरी में सुने थे बजट पहले मिल रहा था, बीच में कुछ नहीं किया। ये अलमारियाँ नए अंदाज से भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये किताबों को प्रेजर्व ये करने का अच्छा अंदाज है। ये इतनी पूरी नहीं है, आप अंदर जी हाँ, मालूम है मुझे, बहुत बहुत अंदर शुक्रिया। को पूरा आप नहीं, ये देखिए। नया जो आया है तो नए अंदाज की नहीं, अभी तो हमारे पास क्या है, वो जगह काफी नहीं हो रही है, तो ऊपर बना के और बहुत अच्छा और करने वाले हैं हम लाइब्रेरी को। आप जरा ये बताइए, आप ये कीजिए। इन नायाब किताबों को प्रिजर्व करने के लिए इदारे अदबियात उर्दू में एक स्कीम को शुरू किया गया है, अडॉप्ट ए बुक अपील। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो किताबें होती हैं उनकी बाइंडिंग के सिलसिले में कुछ 100 रुपये फी किताब अगर बाइंडिंग करते हैं, या फिर उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर कीमत लिखी हुई है 1,000 रुपये या फिर $50 के हथिये से। जब ये किताब प्रिजर्व की जाएगी, टोटली प्रिजर्व की जाएगी, तो उसमें अडॉप्ट जो लेते हैं किताब, उनका नाम और उनका दिया गया कोई फिकरा या कोई कलाम उस पर महफूज किया जाए। जी क्या अडॉप्टेशन की ये उर्दू के नादिर मखतूतात हैं और वक्त के साथ साथ जो है इनकी हालत जो है वो स्याही वगैरह जो है वो खुश्क हो रही है, तो इसको जिल्द करके लैमिनेशन करके महफूज करने का काम बहुत अहम है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बारे में हमदर्दाना गौर करें और अपने नाम एक किताब या फिर अपने बुजुर्गों के नाम, आबा अजदाद के नाम एक किताब इस बारे में अडॉप्ट करें, तो ये किताबें महफूज हो सकती हैं और इसमें आपका नाम वगैरह भी जो है ना किताब पे लिखा जाएगा। और हर रिसर्च स्कॉलर जब किताब को हाथ लगाएगा तो फिर वो देखेगा कि भाई अब्दुल्ला साहब ने इस किताब को महफूज किए हैं। ये एक तरीका है उर्दू की किताबों को बचाने का और हमारे असलाफ के कानूनों को महफूज करने का। अंग्रेजी सेवा दूसरा झेला रही ये उर्दू के मुख्तलिफ किताबें हैं जदीद जिसको यहाँ पर रखा गया है। ये जनूबी हिंद का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर का मुकाम देखिए, हासिल ये कर लिया है। अडॉप्टेशन के वास्ते ये इस तरह से तरीका निकाले हैं। कार्ड्स जो है वो चिपका देते हैं किताब पे,
जो भी लोग जो है उसको अपने नाम से ये करें, और एक उनको शुक्रिया का खत भी दे देते हैं। अडेप्टेशन बुक्स का तरीका हो। ये कदीम किताबें यहाँ महफूज की, ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बन गया है जनूबी हिंद का। यहाँ पर काफ़ी रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं रिसर्च करने के लिए, अपने एमफिल के मकाले और पीएचडी के मकाले यहीं बैठकर लिखते हैं वो लोग। और बाहर के सब आते हैं, जापानी से आते हैं, जापान से आते हैं, अमेरिका के आते हैं। परसों ही अमेरिका अमेरिका की एक लाइब्रेरियन भी आए थे हमारे पास शिकागो विजिट के यूनिवर्सिटी के बाद, आए थे शिकागो के। प्रोफेसर जिम माइक, वो भी यहाँ से इस्तफादा किए हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। अभी हाल ही में जापान से आए थे जो बीजापुर पर विजिट कर रही थी तालिबा। जर्मनी से आते हैं, ये हॉल है लाइब्रेरी का, वैसी है। हाँ, फिर वो तस्वीर है वो उसको भी कवर कर लिया डॉक्टर दो साथी ऊपर है, ये इदारे के बानी हैं। आपका तारुफ पर है यहाँ पर तकरीबन 200 साल कदीम अखबारात भी हैं, गदर से पहले के, गदर के बाद के, तो कहीं भी आपको महफूज हालत में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कदीम अखबारात महफूज हैं। ये भी पूरे अखबारों के ये भी है, पूरा रिजर्व करते हैं सालाना, कई सालों के हमारे पास रिकॉर्ड है अखबारों का। मुख्तलिफ अखबार हैं, सियासत है, रहनुमा है, रहबर दक्कन है, मुख्तलिफ अखबार हैं। ये गोशा शमसुल्लाह कादरी बोल के है, और यहाँ पे पूरे 3 लैंग्वेजेस में तमाम किताबें हैं, उर्दू है, फारसी है, अरबी हैं, पूरे ऐसा लाइन से रखे हुए हैं ये किताब। और जो बहुत रेयर हैं, अब मिलने वाले नहीं हैं ये किताबें, ये अखबारों का ये बनाए ये है ना, ये है ऊपर नहीं आता। ये अखबार तो इदारे की तरफ से महफूज पूरा किया वहाँ पे गया, आता। महफूज किया जा रहा है। जो है मैगजीन्स के खास नंबर रखते हैं, जैसा जोर नंबर, सरदार जाफरी नंबर वगैरह, गालिब नंबर इसके अंदर महफूज हैं। और ये पूरे मैगजीन्स हैं, और इसके अंदर तमाम बुक्स भरे हुए हैं ये अलमारियों में तमाम। इधर भी पूरा इधर आएगा ना ऐसा। ये सब तरह आ जाए, भरे हुए हैं मैगजीन्स है, रेड बुक्स तमाम, कानून पे, इस पे हर फन पे हैं किताबें हमारे पास। 1857 के गदर से मुताल्लिक़ जो अखबारात उस वक्त उर्दू में शाया होते थे, फ़ारसी में, उन अखबारात का एक नायाब ज़ख़ीरा है जिसको मुजल्लद करके यहाँ रखा गया है। इसमें वो अखबारात भी न सिर्फ हैदराबाद के बल्कि दिल्ली से, लखनऊ से, लाहौर से जो अखबारात शाया होते थे उनके ज़ख़ीरे भी यहाँ मौजूद हैं। निज़ाम के ख़ास नंबर यहाँ मौजूद हैं। हैदराबाद से जो आज़ादी से पहले रहबर दक्कन निकला करता था उसके शुमारे निज़ाम गज़ीट है। आप देख रहे हैं कि ये किताबें किस हालत में यहाँ पर रखी हुई हैं और इसको कितनी जल्दी इसकी दोबारा से जिल्दसाजी और लैमिनेशन और मरम्मत की ज़रूरत है। ये अगर इस तरफ तवज्जो नहीं हुई जल्दी तो फिर वक्त के साथ साथ ये जो है ज़ख़ीरा तबाह हो रहा है।
इस तरफ जो है ना आप तवज्जो फरमाएं और जो प्रोग्राम है बुक का अडॉप्टेशन उस तरफ जो है ना तवज्जो करते हुए इसमें से जो है ना कई किताबें जो है महफूज की जा सकती हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जो है ना इस हालत पे जो किताबें रखी हुई हैं तवज्जो फरमाएं। स्टॉक है कई साल का हमारे पास, तमाम हर साल का जो है सब स्टॉक रखे हैं, सब रस्ता दूर दूर से लोग जिसको जरूरत है वो अभी भी खरीदते हैं हमारे पास ये सब रस्ता स्टॉक है। आप इधर आके ये सही। कंप्यूटर भी है इस पे, हम लोग जो है सो काम रखते हैं जी। किताबों की जो जी हाँ। फहरिस्त और उधर से आते हैं ये साइड पे पूरी किताबें, ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में जो नए नए आ रहे हैं। 1 मिनट हैदराबाद का सबसे अव्वलीन इदारा, जैसे कि इसके तारुफ में कहा गया है कि सालारजंग म्यूज़ियम लाइब्रेरी और सालारजंग म्यूज़ियम जैसा एक वाहिद आदमी का कारनामा है। डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर जो जामिया उस्मानिया के प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू भी रहे, उनकी वाहिद कोशिश का नतीजा है। उस ज़माने में उन्होंने सिर्फ इदारा कायम करके एक म्यूज़ियम और एक कुतुब खाना ही कायम नहीं किया, बल्कि एक इम्तिहानी सिलसिला भी। ऐसे तलबा जो उर्दू से शगफ रखते हैं लेकिन किसी वजह से तालीम हासिल करने के पीछे रह जाते हैं, उनके लिए इम्तिहानात का सिलसिला भी शुरू किया। यहाँ हम इम्तिहान के मरकज़ में बैठे हुए हैं, जहाँ उर्दू दानी, उर्दू ज़बान दानी, उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल के इम्तिहानात लिए जाते हैं और इन इम्तिहानात का तारुफ इस इदारे से वाबस्ता सुबह इम्तिहानात के सरबराह आपके सामने दे रहे हैं। उर्दू माहिर जो 7 के बराबर का एग्ज़ाम है। इस साल कितने तलबा इसमें हिस्सा लिए? 300 बच्चे। ये सिर्फ हैदराबाद से लेते हैं या अजला से? तकरीबन 60 अजला को। 60 अजला अच्छा, 60 हाँ। दूसरी डिग्री बताइए। उसके बाद माहिर उर्दू आलिम की सनद हुई है तो इदारा अदबियात उर्दू के अपने इम्तिहानात हैं। ये 10वीं के बराबर है। इसको एक स्टेट गवर्नमेंट ने 10वीं के बराबर करार दिया है, यानी इसमें बच्चा कोई कामयाब हो जाता है तो उसको वही स्टेटस मिलता है जो गवर्नमेंट के 10वीं का इम्तिहान पास करता है। फिर इसके उस्मानिया यूनिवर्सिटी पीडीसी जो एंट्रेंस एग्जाम है। अच्छा, ये फाजिल की सनद है और इसका कामयाब करने वाला इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट। इसी बेस पर कोई भी तालिब इल्म BA BCom में एडमिशन ले सकता है। और कई बच्चे जो है ये डिग्री पास करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में BA में इम्तहान देकर, BCom में इम्तहान देकर MA और MCom भी कर चुके हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश ने इदारे अदबियात उर्दू के इम्तिहान को मुमासिल करार देकर ये जियो निकाला है। इस जियो के रूह से जो भी बच्चा हमारे इदारे अदबियात उर्दू का फाजिल का इम्तिहान देता है उसको इक्विवेलेंट टू 12 की डिग्री करार दिया जाता है। ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है और उसके साथ ही ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इसको एफिलिएशन दिया है। जामिया उस्मानिया से उसका एफिलिएशन आपके सामने मौजूद है। यानी कोई भी बच्चा जिसकी उम्र